दुनिया की कुल आबादी है 8 अरब 30 करोड़ और दुनिया में कुल बीमारियां हैं आदमी को 9 अरब 87 करोड़। यानी कि एक ही आदमी को 4 से 5 बीमारियां, जैसे कि ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटीज़ भी है, थायराइड भी है, डिप्रेशन भी है और हार्ट संबंधित बीमारियां भी हैं। आगे आप इसे पहले इस वीडियो को देखें, फिर इसे एक कहानी के रूप में और आंकड़ों के रूप में समझें। प्रभु सुना बाकी है। कैसे हो काका? क्यों? क्या नाम है प्रभु? हेलो वो भाई के हैं? क्या नाम है आपका? क्यों? अरे मैं आपके साथ मदद करने के लिए आया हूँ। मेरी बात सुनो, इधर खड़े हो जाओ। चलो बैठे बैठे बात करते हैं। चलो, चुप रहने में फायदा नहीं है। चलो। ए चलो से करना खुना है चलो चलो से करना खुना है चलो चलो मैं चला बोला जाऊँ। क्या वाला चलो जाओ चलो खड़े हो जाओ। हाँ कई बात नहीं चलो चलो खड़े हो हाँ जाओ। कई बात नहीं मैं आपकी मदद के लिए आया हाँ हूँ। कई बात नहीं। यहाँ कितने टाइम से है भाई? 3 महीने से एरिया में घूमते, हम लोग खाना भी देते हैं, लेकिन लोकेशन बदलता रहता है, इसलिए मालूम नहीं पड़ता था। अभी सुबह का यही जगह पर है। ऐसा नहीं बोला चलो काका। काका नहीं बोला अरे आपकी नहीं वो बोला चले जाओ कहाँ चले जाओ? बोलो, जाओ जाओ क्या नाम है आपका? भाई नाम रख अरे नाम आपो તમારું। अरे मैं चुप रहने वाला नहीं हूँ, चुप नहीं रहूँ मैं। चलो, ये बात तो સાંભળો, તમારી મદદ માટે આવ્યો છું। મેં બોલાયો તો છે પણ તમે મદદ માટે હે? મને બોલાયો છે હા, તમે બોલાયો મને। હા પણ હું બોલાવતે આવું હા, વાંધો નહીં। ચાલો, કચરા પેટીમાં ના રહેવાય। ક્યાં પોઈન્ટ પીવો પડશો હે? ક્યાં પીવો છો જાઓ તમે ચિત્રલેખા हाँ, તો चित्रलेखा। ચા માણે છે हाँ, चलो। હા જાઓ क्या अरे मेरी बात तो सुनो आप। मेरी बात। सुवारो हाँ, खड़े हो जाओ। चलो। अरे हमें बीमार છે અરે, દવાખાને अरे ताप लेवा कोई છે डॉक्टर आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? क्या करेंगे व्हाट इज योर नेम? नहीं इंग्लिश में बात करते नहीं हैं। बिल्कुल नहीं चलो आ जाओ सर। अरे हाथ चलो चलो चलो। भाई बस बस बेसाड़ो बेसाड़ो एने बेसाड़ो। कोई जवाब नहीं छापो ક્યાંથી છો હું તમે? બોલાવ ચા ના લઈ જાઓ મારે ખાવ ला હું બોલાવ ચા આપજો અચ્છા ના લઈ જાઓ कहाँ से हो ના आप? પણ कहाँ હું से? સુરત જ છું हैं? सूरत ना છો તમે? પણ મારા માથું ખેંચો અરે મારી વાત સાંભળો આમ હા જો. પણ માથું ખેંચો શું માથું દુખે? જાય છે જાય છે હે? જાઓ પછી આવો. સાઈડમાં હટી હું જાઓ. બોલાવીશ તમને જાઓ ફોન કરીશ લાવો ચાલો મારો ફોન. હવે નથી બોલું અરે આમ જો સુરત હા મારે નથી જ બોલું પણ અત્યારે મને લાગે હા સુરત માં કોઈ પણ નામ ભલે છે ને વાંધો પેલા. નહીં ભલે જાઓ કાકાજી કેવો કાકાજી બોલો તો શું બોલીએ તમે? એ अरे जाओ वहाँ खाना पीना सब मिलेगा, कपड़ा लता तो नाला મને ખબર છે बाल साल दाढ़ी दाढ़ी फाड़ी મને બોલાય જવું નથી મને ખબર છે શું ખબર છે તમને? ન બોલાય જવું નથી સાહેબ કે માનો क्या? જાઓ પણ ઉચિત તો સમજતો જાઓ નહીં એવું ના ચાલે. ચાલો. હું અહીંયા કઈ કામ નથી આવવાનું તો ક્યાં રહ્યો છો તમે? જાય શું કામ અરે પણ તમારું નામ બામ તો કયો કઈ પેલો કાપ. રૂપિયા 5 ₹1,00,000 ચાલો પેલા મૂકો પેલા ટ્રાન્સફર કરું. ચાલો. કેમ છો કયા સાહેબ હે? કયા સાહેબ મેં આવી રીતે રોડ ઉપર રહેતા હોય ને લોકો હા. માટે મદદ માટે આવતા હોઈએ છીએ. હે તમે બોલાયો છે તમે અરે આ ભાઈએ બોલાવ્યા હા મને. ભાઈ पहले बोला था ना ના तुमको, પણ बोले બરાબર आएगा। સંભાળો છો તમારું નામ દીપકભાઈ? હા દીપકભાઈ નામ હે? દીપકભાઈ ના ને? પાડી હા, એ દીપક ભાઈએ અંકલ ના હા, પાડી વાત કરો પપ્પા પોપટભાઈ. માનો ચલો ચલો. તમારો ભાઈએ ના પાડી પરિવારને મળી હા જાઓ. પણ એ તમારો તો ભાઈ એ હત્યા કા હત્યા ચાલો, કા ચાલો, ઊભા એ રહો જાઓ. એ કોઈ ખુલા કા હત્યા કા अरे आप आप हाथ छोड़ो। आपका घर कहाँ है? બીમાર છે અમે घर क्या આ ભલે ના કઈ છો चलो चलो आप આ તો હત્યા કા હત્યા કા હું એમને જવાબ આપીશ તો જાઓ हाँ, आपको बीमार जवाब- दवा हो जाएगा वहाँ पे। અહીંયા ઉઠાઈ જવું નથી હું તમને કીધું ને જવાનું કહેતા હું હતા. તમારા ખાવા નથી માંગતો તમને 2 દિવસ પહેલા તમે એવું કહેતા આ હતા. બધે બધું મેં કહ્યું 2 દિવસ પહેલા તમારા આટલી વાત પરિવારને કરો મળવું છે. અત્યારે વાત કરો અત્યારે વાત કરો એમનું નામ શું છે ભાઈ? દીપકભાઈ. અત્યારે કઈ કામ નથી એમને હું કહીશ એ લઈ જશે હા, તમારું નામ હા, જાઓ. દીપકભાઈ ને? ના આપણે જાઓ જાઓ હા, હા જાઓ તમે ચાલો મારા હારે. હા બા કઈ જગ્યાએ હું આવું. હા પણ ચાલો તો આપણે બેવું છે હા, તે આપણે બતાવીએ. હા બનાવ કામ છે
તમારા બાલ દાઢી એકલા હોય તો હા તમે બે ચાલો આપણે બે ચાલો, આપણે બે. અત્યારે જો આ ચાલો ચાલો હું આવું તો સરનો ટાઈપ પર હા ચા પીએ ચાલો અપા ખાવાનો ચા પી હું આવું હારે ચાલો. અપા મને આવડે છે અરે એમ અપા હા છોડો ને અરે જે ઓછી કહો જે ઓછી કહો હે? હું વખતો તમને કોઈ હા, હા, વાંધો અપા હા છોડો હા ચાલો ઉભા થઈએ. ચાલો અપા હા ચાલો, છોડો ભાઈ. હું આવું ને પછી. અરે એ, હું આવું. અરે અરે આપણી આ દોસ્ત. એ, હું તમને ઓળખું છું હા, તો મને ઓળખે એટલે અપા હાથ તો છોડો હાથ તો આવડે હા ચાલો આવી તો અમારે શું રેવાય. છો કહો કાકા આમ કાકા ની બોલો ભાઈ બોલો હા ભાઈ અમારી વાત અપા હાથ તો છો અહીં બી આવો, અહીંયા ના કઈ જાઉં ગાડીમાં જઈએ ને અપા કયો કાઈ માં છો સામે હા તો હું જઈશ મને આવડે ચાલો હા તો ચાલો ચાલો પૈસા બતા હતો હા ચાલો જાતે આવશો કઈ આવે માં છો અહીંયા કેમ આ ગાડીમાં આપા હું જઈ શકું એક હે? હું જઈશ હા, ચાલો. જબરજસ્તી કા હું તો ઘરનો છે તમારો ભાઈ નો છે મારા અંકલ છે. હાથી અડકો ડૂબા ચાલો ચાલો ડૂબા રહો નહીં ઉપર રહેવું. આપા હાથ તો છોડો હા પણ ચાલો ને હાથ કેમ છોડો પકડ્યા છો? હાથ છોડો હા, ચાલો, ચાલો ચાલો. આપા સફાઈમાં ક્યાં રહ્યો છો તમે જાય શું આમ છે પણ તમારી વિશે જણાવો તો ત્યાં કઈ તમે વાંધો નહીં ઘરે નહીં જવું જય સુમાવે હે અહીંયા છે માવ કર ક્યાં છે ત્યાં શું કામ છે તમારા પરિવારમાં આમાં માણસ છો પરિવારમાં કોણ કોણ છે ત્યાં કઈ જાઉં નહીં જવા માંગતો નહીં, ચાલો. હા છો ચાલો સફાઈ ચાલો, ચાલો, ચાલો. એ જબર એ ચાલો, ચાલો. એ ઓયમાં હું જાય શું ચાલો જાય ચાલો એ મારા હારે એ ઓછો બોલાય ચાલે ના જાવ છો બા અંદર બેસી જાઓ કઈ જગ્યાએ અરે અહીંયા બેસો કઈ જગ્યાએ दवा खाना કઈ बीमार ડોક્ટર होना बीमार होना હું જઈશ અરે કઈ નહીં, यहाँ कितने टाइम से 4-5 महीने से 4-5 महीने से देख रहा हूँ कहीं 30 पॉइंट पे कहीं उधर अब आपका सर थैंक यू सो मच आपने फोन किया और थैंक यू सो मच सर और दोस्तों आज इसको लॉक कर देना तो खोल થઈ दे જો कुछ नहीं होगा अब वो शांत हो जाएगी नंबर तो चले दोस्तों अभी भाई यहाँ पांडेसरा विस्तार में काफ़ी महीनों से घूम रहे थे और बिल्कुल बुजुर्ग है और कचरा पेटी के अंदर काफ़ी महीनों से ऐसे इधर सो जाने का और बहुत मुसीबतों के साथ चलो ठीक है इंसानियत के नाते बदलाव लाते और उन मूलभूत रूप से वो सूरत से ही बता रहे मुझे लग रहा है उनका परिवार और सब कुछ होगा पर कुछ इश्यू के कारण शायद वो घर छोड़ दिया है चलो सर थैंक यू उनके परिवार तक पहुंचा देंगे हम हाँ थैंक यू नंबर सर यही है हाँ यही 76 वाला हाँ यही है ये नंबर नोट कर लीजिए यही चले दोस्तों अभी हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन और वहाँ पे जाके बाइक का वेरिफिकेशन करा चलो બધા લોકોની મદદ કરજો હા આવા જય સ્વામિનારાયણ આવજો आपका नाम क्या है दीपक भाई शुक्ल दीपक भाई सुकल आप कहाँ से हो अंकल मैं सूरत से सूरत से ही हो तो आपका परिवार पड़ा है जय स्कूल उसके पीछे घर गोपीपुरा जय स्कूल के पास दोस्तों काका का मस्त वेरिफिकेशन हो चुका है और अभी उनको लेके जा रहे हैं आश्रम जहाँ पे उनके हालात को बदलते हैं काफ़ी दिनों से नहाए नहीं है और गाड़ी में बहुत ही दुर्गंध आ रही है उनकी जो भी कुछ हालात है बिल्कुल ठीक हो जाएगी इतने आप अंत तक देखिए और शेयर जरूर करना वीडियो को तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं ओल्ड एज होम लोक कल्याण वृद्धाश्रम आ जाओ आ जाओ आ जाओ हैं किससे बात कर रहे हो अकेले अकेले आ जाओ बात करो गुजरात बोलो હા કોની સાથે વાત કરો છો કેમ તમારે શું કામ લાવો ગુજરાતીમાં બોલો પછી હા છોડો ચાલો હા व्हाट इज योर फुल नेम आई डोंट नो यू डोंट नो हाँ ओके कम दोस्तों एक ऐसी जगह जहाँ पे ऐसे बुजुर्ग के लिए बहुत अच्छी सुविधा है और रहने की खाने पीने की अच्छी व्यवस्था के साथ यहाँ लोक कल्याण वृद्धाश्रम काम कर रहा है तो बस यही सबसे बड़ी बात है और आओ बैठो इधर सर आपका पूरा परिवार कहाँ पे रहता है मैं तो यहीं पे रहता हूँ। आपका परिवार भैया तो मुझे मान वो तो अलग रहते कहाँ है? मैं तो अकेला रहता नहीं आपका परिवार कहाँ रहता हूँ। है मेरा परिवार तो यहाँ नहीं है कहाँ रहता है हाँ तो भाई सर्जन पालेपन कहाँ पालेपन पार्ले पॉइंट पहले क्या काम करते थे आप मैं नौकरी करता हूँ स्कूल में स्कूल में नौकरी करते थे कौन सी जगह पे चौक बाजार चौक में चौक बाजार तो एक शिक्षक थे आप वो तो गोतो की स्कूल में था शिक्षक गोतो के स्कूल में शिक्षक था मैं अच्छा हमें तो चौक कौन बाजार से काम- विषय को पढ़ाते थे समाज विद्या समाज विज्ञान अच्छा
कोई बात नहीं अंकल, आप एक शिक्षक हो के आपकी हालात आप देखिए। आप समाज में अभी आपको सब लोग ठुकरा रहे, इधर उधर के ठोकरे खा रहे हो। तो मैं मकान तोड़ डाला, इसके मैं वहाँ बोला उन लोग को। अच्छा, आपके पूरा बच्चे थे मकान कोई? पे तोड़ डाला, फिर उन्होंने मुझे खाना भी कल सर बार बार एक ही खाना दिया। तो कोई बीमार पड़ सकता है कि नहीं? हाँ, आपके और बेटे हैं कोई? वहाँ से निकाल दिया वापस। आपके लड़के कोई है? लड़के लोग तो है, मगर वो वहाँ है कहाँ? सोने फरिया नौकरी करते हैं। क्या नौकरी करते हैं? डॉक्टर है, कोई एनजीओ वकील है। एक वकील है, एक डॉक्टर है। आपका बेटा? मैं तो सारी सुना कभी सारी। एक बाप की हालत ऐसी है, देखो वो भी एक शिक्षक थे एक दिन। आप हैं? करेगा तो अभी कोई भी मैं- मारेगा, वो तो मेरी सीधी बात सुनो, है। अभी मेरी बात सुने, बड़े बड़े बाल हो चुके हैं मगर ना, ये देखो ना, एक काट देते हैं पूरा, क्या ये पूरा घुसला निकाल देते हैं, ठीक है, हल्का हो जाएगा शरीर, नहा लेते हैं, नए कपड़े पहन लेते हैं, ठीक है, बरोबर ना? चलो कोई बात नहीं। दोस्तों आप सोचिए कि अंकल अपने टाइम में शिक्षक थे, सामाजिक विज्ञान बच्चों को पढ़ाते थे, और इनके हालात आप देखिए। अभी उनके बेटे जो है एक डॉक्टर है, फिर एक वकील है, पता नहीं कि सच बोल रहे कि झूठ है, बट इंसानियत के नाते आज उनके हालात आप एक बार नज़दीक से देखिए। काफ़ी दिनों से नहाए नहीं है, पूरा घोंसला जैसा बन चुका है उनकी स्थिति, और ये शर्ट का कलर भी बदल चुका है, टी शर्ट का। तो चलो ठीक है, देखते आगे क्या हम कर सकते हैं, आप अंत तक देखिए। हिलना मत है काका, ये बाल काट रहा हूँ। एक शिक्षक होके एक दिन ऐसे बच्चों को पढ़ाते थे, आज खुद की हालत ऐसी हो गई कि कोई पास में नहीं खड़ा रह रहा है। ठीक है, समय समय की बात है, हर एक व्यक्ति का समय बदलता है, सुधरता है, पर चलो ठीक है, अभी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। अभी लोक कल्याण वृद्धाश्रम में लाए हैं, यहाँ पे अच्छी सुविधा के साथ रहेंगे और अपनी ज़िंदगी को आने वाले टाइम में भगवान का नाम लेंगे, और इससे बड़ा कोई आपके सामने परिणाम है नहीं। कितने महीनों से बाल काटना था? 4 महीने से कोई काट नहीं रहा था। क्या कहते थे सब लोग? बहुत बोलते हैं, 500 रुपया लाओ, 600 लाओ, 800 लाओ, 40-50 तो काट। क्या कहते थे? 400-500 लाओ तो काट लेता हूँ घर पे आके। 400-500 रुपए का बाल काट दूंगा। 400 रुपया दो तो बाल काट दूंगा। घर पे 40 रुपया 50 रुपया तो दो। 40-50 रुपया तो नॉर्मल भाव चल रहा है। तो आप दुकान पे जाते थे? जेब पे है ही नहीं, पैसा ही नहीं था, तो आप मुझे कितना दोगे? एक हैं? कोई बात नहीं, मुझे बस आशीर्वाद देना। हाँ, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। अंकल बता रहे कि मैं कोई भी दुकान पे जाता था तो मुझे 400 रुपया 500 रुपये कहते थे, पर उनके पास जो पैसा ही होता तो आज उनके दिन ऐसे नहीं होते। आपके पास कोई सुविधा है तो प्लीज़ ऐसे व्यक्ति के बाल ज़रूर काट दीजिए। बाल काटना कोई बुरी बात नहीं है, और उनका जो जीवन का जो भार है, इतने टाइम से वो नहाए नहीं है, इतने टाइम से अच्छी तरीके से कपड़े नहीं पहने हैं, तो पागल होते नहीं है, बनाए जाते हैं। उनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है। अंकल बिल्कुल नॉर्मल है। एक दिन वो शिक्षक थे और उनकी हालत आज ऐसी हो गई है, ये बात सुन के मुझे ऐसा हो रहा है कि भाई ऐसे दिन कैसे आ गए। तो चलो ठीक है, समय समय की बात है, बट आप भी अपने जीवन में अच्छे कर्म कीजिए, किसी की मदद कीजिए। आपके पास भगवान ने दिया है तो किसी की देने के लिए तो आप किसी के मदद रूप बनिए, और आपके पास जीवन में कुछ है नहीं तो बस किसी को अच्छा भला करने का सोच रखिए। थैंक यू सो मच। अभी अंकल को मस्त नहला देते हैं। हाँ, नहा लेते हैं ना। कितने महीनों के बाद नहाओगे? 8 साल हुआ। 8 साल 8 साल से नहाए नहीं? क्या बात कर रहे हो? बारिश के पानी से नहाते थे? हैं? कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ। अब झूठ बोल रहे हो, 8 साल से नहीं नहाए? 8 महीने होंगे। 8 साल हैं? 8 साल हुआ। अच्छा, अच्छा, तो अभी बेटे वगैरह सब कुछ आपके पास आ रहे हैं? सोनी पड़ी। सोनी फलियार है। कौन डॉक्टर है? एक बेटा? एक इंजीनियर, एक वकील। हैं? एक वकील इंजीनियर, एक इंजीनियर है, एक वकील भी, एक वकील है, और एक इंजीनियर, एक डॉक्टर। एक डॉक्टर है। उसका खुद का कितना बेटे है आपके? 3। इंजीनियर का काम, इंजीनियर का, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर, एक डॉक्टर है, एक वकील। एक वकील है, और एक इनका बाप रोड के ऊपर ऐसी हालात में घूम रहा है। हैं? वो तो नौकरी। आपकी भूल होगी। हैं? जीवन में बहुत कुछ किया आपने। आपके बेटे आपको संभाल सकते थे, पर शायद आपकी वजह से वो संभाल नहीं पाए। सही है ना? अब सुधरना है ना?
સુધરવું છે ને? બસ આવી હાલતમાં ફરીથી નથી આવવાનું, સમજ્યા? હું તમારો વિદ્યાર્થી છું એમ સમજો, હે ને? ચાલો નાઈ લઈ આવો. ये रेवा दो, चप्पल निकाल दो चप्पल, अंदर चलो. है काका? 8 साल के बाद मुझे नहलाने का मौका मिला है. क्या मुझे तो काका भगा रहे थे अभी, हैं? हल्का हो गया शरीर. बस दोस्तों, यही सबसे बड़ी बात है कि आज अंकल को एक नया जीवन मिलने का मौका मिला है. सब आपके बेटे के पास नहीं जाते थे आप? जाते थे चौक बाजार, चौक बाजार में? सोने अच्छा. पड़िया तो फिर वो क्या कहते थे? आपको घर पे रहना चाहिए ना, इस रोड पे थोड़ी रहना चाहिए, हैं? इतने अच्छे इंसान हो आप. डिफिकल्टी है वहाँ रहने के लिए. क्या difficult? हॉस्पिटल में तो रह सकते हो. तो आपका घर तो होगा ना? तो हॉस्पिटल है वहाँ, प्राण नहीं. प्राण सेवा संघ हॉस्पिटल है, वो मेरा पापा है. क्या? प्राण साहब फिल्म अभिनेता प्राण साहब. कौन? प्राण साहब सेवा संघ हॉस्पिटल. क्या हॉस्पिटल का नाम क्या है? प्राण सेवा संघ हॉस्पिटल. ओके. हाँ, वो मेरा पापा की है. प्राण साहब है ना, कहाँ पे वो? वो सगम पार्क के उस साइड पे. अच्छा, मल्टी स्पेशलिस्ट है. हाँ, अच्छा. मुझे मालूम है. तो अभी आपके परिवारजन एक डॉक्टर है, तो आप घर क्यों नहीं जाते थे? घर नहीं है, हैं? घर नहीं है. आपके बेटे का तो है ना? है मतलब वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है. आपके बेटे के साथ झगड़ा हुआ है ऐसा? वो सिटी में रहता है. तो क्या हुआ? वहाँ पे रहना चाहिए ना, ऐसे भिखारी की तरह क्यों घूमते थे? हैं काका? ऐसे ऐसे नहीं रहना चाहिए ना. अभी मेरी बात सुनो, जब तक आपका परिवार आपको लेने ना आए ना. क्यों रो रहे हो? हैं? क्या हुआ? कोई संभालता नहीं था. नहीं, आप रोइए मत, हम आपके बेटे ही है. बस आज भगवान की कृपा से हम आपकी सेवा कर पाए. बाकी हमें भी नहीं पता था कब इतनी बुरी हालत के साथ जी रहे हो. मैं समझता हूँ कि आपके 3 लड़के हैं और वो भी एक अच्छी पोस्ट पे है. शायद उनकी भी कोई गलती होगी, आपकी गलती होगी, इसलिए आप घर पे नहीं रहते थे, बराबर ना? पर मैं कोशिश करूँगा, वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को बोलता हूँ कि शायद आपके घर वाले आपको एक्सेप्ट करें और आपके पास एक हिम्मत है, आप जी सकते हो अच्छे रूप से. पर ऐसे साफ सुथरे रहना चाहिए ना. आप नहाते नहीं हो, कपड़े नहीं बदलते हो, मतलब बुरी तरीके से लोगों के साथ बिहेवियर करते हो, तो अच्छी बात है. उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया था. क्या गलत किया? लोग ने क्या गलत किया? महामारी किया था. क्या महामारी किया था, घर खाली करवाने के. किसने? सोसाइटी वाले. सोसाइटी वालों ने. मैंने. आप अच्छे इंसान हो, अच्छे रूप से रहो, है ना? आंसू पोंछ डालो. अच्छे रूप से रहोगे ना, यहाँ पे मदद करवाना सबकी, ठीक है? बस दोस्तों, आज हमारे काका जो बिल्कुल नॉर्मल है, उनके पास कोई खड़ा नहीं रह सकता था, इतनी बुरी हालात थी. 8 साल तक नहाए नहीं थे. बट यही व्यक्ति है जिनको हमने टाइम दिया, हमारी पूरी टीम ने, और आज लोक कल्याण वृद्धाश्रम ओल्ड एज होम के अंदर उनको लाया गया है. और बहुत अच्छी सुविधा है डिंडोली के अंदर. यहाँ पे एक बार आप ज़रूर आइए और सपोर्ट ज़रूर करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही सब कुछ काम हो रहा है. तो सपोर्ट देते रहना. और काका को कोई व्यक्ति जानता है, जिस तरीके से वो बता रहे, मैं शिक्षक था, मेरा बेटा डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक वकील है, तो प्लीज़ उनके बेटे तक ये वीडियो को शेयर करिए, ताकि खोया हुआ व्यक्ति अपने घर वापस जा सके. थैंक यू सो मच. सपोर्ट जरूर देना और शेयर वीडियो को जरूर करना. थैंक यू. चलो काका, आओ, मैं आपकी जगह दिखा देता हूँ. आज पूरी दुनिया में 1.3 अरब 130 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में विकलांग हैं। ये दुनिया की 16% आबादी है। अंधापन ब्लाइंडनेस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार पूरी दुनिया में लगभग 4.3 करोड़ 43 मिलियन लोग पूर्ण रूप से अंधे हैं, जो जन्म से या किसी हादसे के कारण कभी कुछ नहीं देख सकते। इसके अलावा करीब 29.5 करोड़ लोग गंभीर दृष्टिबाधित हैं। बहरापन डेफनेस
दुनिया में लगभग 43 करोड़ 430 मिलियन लोग ऐसे हैं जो बहरेपन डिसेबलिंग हियरिंग लॉस का शिकार है। वो हमारी और आपकी तरह आवाजें नहीं सुन सकते। अंग भंग एम्प्यूटीज बाय बिना हाथ पैर वाले दुनिया भर में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बिना हाथ या बिना पैरों के जन्म लेते हैं या एक्सीडेंट, युद्ध और बीमारियों जैसे शुगर के कारण अपने अंग खो चुके हैं। भाग 2, मौत का इंतजार, लाइलाज बीमारियां, टर्मिनल एंड इनक्यूरेबल डिजीजेज। संजय सेठी अब बात करते हैं उन बीमारियों की जिनका नाम सुनते ही इंसान को अपनी मौत सामने नजर आने लगती है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं और इंसान के पास सिर्फ मौत का इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वे बीमारियां जिनमें बचने की संभावना लगभग 0% होती है। एडवांस स्टेज कैंसर, स्टेज 4 कैंसर्स, खासकर पैंक्रियाटिक कैंसर और ग्लियोब्लास्टोमा ब्रेन कैंसर। अगर ये आखिरी स्टेज पर पहुंच जाए तो बचने की कोई संभावना नहीं होती। दुनिया में कुल कैंसर मरीज 5 करोड़। ALS, एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, ये वही बीमारी है जो मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग को थी। इसमें इंसान का दिमाग तो काम करता है लेकिन पूरा शरीर धीरे धीरे लकवाग्रस्त, पैरालाइज्ड हो जाता है और अंततः सांस लेना बंद हो जाता है। इसका कोई इलाज नहीं है। अल्जाइमर और गंभीर डिमेंशिया अल्जाइमर्स, दुनिया में 5.5 करोड़ लोग इससे पीड़ित हैं। इसमें इंसान अपनी याददाश्त, अपने परिवार और खुद को भूल जाता है। इसका भी कोई इलाज नहीं है। रेबीज, अगर किसी जानवर के काटने के बाद इंसान के शरीर में रेबीज के लक्षण आ गए तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर उसे नहीं बचा सकता। मृत्यु दर 100% है। HIV बाय एड्स, दुनिया में लगभग 4 करोड़ लोग इससे पीड़ित हैं। हालांकि आज दवाइयों से जिंदगी लंबी की जा सकती है लेकिन इसका पूर्ण इलाज आज भी मौजूद नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारियां संख्या के आधार पर: हाई ब्लड प्रेशर 1.3 अरब मरीज, हृदय रोग बाय हार्ट अटैक 54 करोड़ मरीज, डायबिटीज बाय शुगर 53.7 करोड़ मरीज, किडनी रोग 50 करोड़ मरीज। भाग 3, समाज का सबसे काला सच, द डार्क अंडरबेली ऑफ सोसाइटी, संजय सेठी। बीमारियां तो फिर भी शरीर को मारती हैं लेकिन अब जो आंकड़े मैं आपको दूंगा वो इंसान की आत्मा को मारते हैं। मानसिक रोगी, मेंटल इलनेस, पूरी दुनिया में 1.2 अरब 120 करोड़ लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और सिजोफ्रेनिया, पागलपन के शिकार हैं। हर 7 में से एक इंसान अंदर से टूट चुका है। अकेलापन, लोनलीनेस, दुनिया के 1.5 अरब लोग भयानक अकेलेपन का शिकार हैं। ये इतना खतरनाक है कि इसके कारण हर साल 8,71,000 लोग मर जाते हैं। ये रोज 15 सिगरेट पीने जितना खतरनाक है। आत्महत्या, सुसाइड, इसी तनाव के कारण दुनिया में हर साल 7,20,000 लोग, हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति अपनी जान दे देते हैं। आधुनिक दास्ता और देह व्यापार, स्लेवरी एंड सेक्स वर्क, आज भी दुनिया में 5 करोड़ लोग आधुनिक दास्ता गुलामी के शिकार हैं। इनमें से 63 लाख लोगों को जबरन देह व्यापार, फोर्स्ड सेक्स वर्क में धकेल दिया गया है, जिनमें 99% महिलाएं और मासूम बच्चियां हैं। अनाथ बच्चे, ऑर्फन्स, दुनिया भर में 15.3 करोड़ अनाथ बच्चे हैं। इनमें से 30 से 90 लाख बच्चे अनाथालयों की चारदीवारी में अपनी जिंदगी काट रहे हैं। कैदी, प्रिजनर्स, पूरी दुनिया की जेलों में 1.2 करोड़ से ज्यादा लोग जानवरों की तरह ठूंसे गए हैं। हत्याएं, मर्डर्स, दुनिया भर में हर दिन 1200 से ज्यादा लोगों की अपराधियों द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। सड़क हादसे, रोड एक्सीडेंट्स, हर 24 सेकंड में एक इंसान, यानी हर साल लगभग 12 लाख लोग सड़क पर तड़प कर जान दे देते हैं। भाग 4, जो हम भूल गए, द फॉरगॉटन ट्रूथ, संजय सेठी। इन सब के अलावा एक कड़वा सच और है जो हम अक्सर भूल जाते हैं, भूखमरी, स्टार्वेशन। आज जब हम पिज्जा और बर्गर फेंक देते हैं तब दुनिया में लगभग 73 करोड़ 735 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्हें रात को भूखे पेट सोना पड़ता है। हर साल कुपोषण और भूख से लाखों बच्चे मर जाते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन, संजय सेठी, तो ये है हमारी दुनिया का वो सच जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जब आप अगली बार अपनी जिंदगी से कोई शिकायत करें तो इन आंकड़ों को याद कर लीजिएगा। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो जिंदगियां हैं जो हर पल नरक भोग रही हैं। अगर ये सच आपके दिल तक पहुंचा हो तो इस वीडियो को शेयर करें और सच्चाई का सामना करें, क्योंकि याद रखिए, ये जितने भी रोग हैं इनके मूल में धन पाने की इच्छा होती है। 70% तक 30% रोग, जैसे कि कोई यदि जन्म से ही अपंग पैदा हुआ है, किसी के माता पिता दोनों ही मर गए, छोटा बालक अनाथ हो गया, बहुत से बुजुर्ग माँ बाप को उनके बच्चे ही अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं। और रोगों के पीछे एक बहुत बड़ा मायाजाल है जो कि दिखता नहीं है। दुनिया में कम से कम 25% ऐसी है जो एक इंसान ने दूसरे इंसान को दी है। घर में, समाज में कोई मित्र, रिश्तेदार धनी हो जाता है। मैंने अनाथ आश्रम में रहने वाले लोगों पर अध्ययन किया, सड़क पर भीख मांगने वाले पागल हो चुके लोग, और बहुत से शारीरिक और मानसिक रोग। 25% तक ये रोग परिवार, मित्र, समाज देता है। यदि आपके पास धन नहीं है या आपने अपना धन अपने बेटों के नाम कर दिया तो जैसे ही धन बेटे के पास आता है, बेटा बहू अपने माँ बाप को उठाकर अनाथ आश्रम बाहर फेंक आते हैं। विजयपत सिंगानिया इसका उदाहरण है।
अनाथ आश्रम में रहने वाले 20% बुजुर्ग देश के अरबपति थे, पर जैसे ही जायदाद बेटों के नाम हुई, उन बेटों ने अपने बुजुर्ग माँ बाप को मारा और घर से धक्के मारकर निकाल दिया। बीपी, हार्ट, किडनी कैंसर, मधुमेह जैसे रोग आदमी को मूल रूप से धन के लालच की वजह से होते हैं। जो बेटा अपने बाप को मारता है उसे अनाथ आश्रम के बाहर फेंक आता है। ऊपर से तो ऐसा आदमी ठीक दिखता है, पर मूल बात जो आदमी नहीं जानता है, ये जो मानव जीवन का यंत्र है, ये मूल रूप से प्रेम की प्राप्ति के हिसाब से इसे इसके आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया है। और प्रेम होता है परिवार की एकता में, पर आदमी धन पाता है और परिवार से अलग हो जाता है। उसे लगता है कि धन आ गया तो स्वर्ग आ गया, पर मूल बात यह है कि जैसे विंडोज सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं है, ऐसे ही शरीर तो हार्डवेयर है और प्रेम सॉफ्टवेयर है, और प्रेम रूपी सॉफ्टवेयर को आदमी अपने ही हाथों से तोड़ देता है। प्रेम के बिना आदमी ज़ॉम्बी हो जाता है। धन होता है और धन से आप वस्तुएं खरीद सकते हैं। खुशी बाजार में नहीं मिलती है। खुशी तो आपसी संवाद से मिलती है, और जब धन तो मिलता है पर खुशी नहीं मिलती है तो भीतर का सॉफ्टवेयर खत्म हो जाता है। उसी से तो धनी लोगों को रोग होते हैं, कमजोर को रोगी कर दिया जाता है, तो धनी खुद ही ज़ॉम्बी की जिंदगी जीता है। संजय सेठी। कल्पना कीजिए कि हमारी दुनिया एक बहुत ही खूबसूरत सी चमचमाती गगनचुंबी इमारत है। हाँ, बिल्कुल शीशे और स्टील से बनी हुई। सही कहा, जिसकी ऊंचाई बादलों को चीरती है, और मतलब बाहर से देखने पर यह इमारत एकदम परफेक्ट लगती है, एकदम चमकती हुई। हाँ, इसके सबसे ऊपरी हिस्से में जो पेंट हाउस है, वहां बैठकर इंसान चांद और मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की बातें कर रहा है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग और न जाने क्या क्या हाईटेक चीजें इस इमारत की चमक को और बढ़ा रही हैं। लेकिन इस पूरी तस्वीर में एक बहुत बड़ा भ्रम छुपा है। कैसा भ्रम? मतलब इंसान की नजर हमेशा उस चमक दमक और उस सबसे ऊपरी पेंट हाउस पर ही टिकती है। लेकिन आज की इस चर्चा में हम उन स्रोतों और आंकड़ों का गहराई से विश्लेषण करेंगे जो इस इमारत की नींव की असलियत बताते हैं। वो आंकड़े जो संजय सेठी जी ने प्रस्तुत किए हैं। बिल्कुल। आज हम उस पेंट हाउस से निकलकर सीधे लिफ्ट से उस सबसे निचले बेसमेंट में जाने वाले हैं, जहां काफी अंधेरा है। हाँ, अंधेरा है, और जहां की दीवारों में गहरी दरारें पड़ चुकी हैं। सत्य और आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। और यही आज का हमारा मिशन भी है। हम इस बात की तह तक जाएंगे कि इन कठोर आंकड़ों के पीछे का विज्ञान, या कह लें मनोविज्ञान, क्या है। सही कहा। मतलब ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे इंसान अपनी ही बनाई हुई दुनिया में शारीरिक और मानसिक रूप से खोखला हो रहा है। तो चलिए इस अंधेरे में थोड़ी फ्लैशलाइट डालते हैं। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं। स्रोतों में सबसे पहले जो डेटा सामने आता है ना, वो इंसान की शारीरिक अक्षमता को लेकर है। बताया गया है कि पूरी दुनिया में लगभग 1.3 अरब लोग किसी न किसी रूप में विकलांगता का सामना कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, मतलब कुल आबादी का 16%। और इस 16% को सिर्फ 1% के रूप में देखना बहुत गलत होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि दुनिया का हर छठा व्यक्ति एक ऐसी दुनिया में नेविगेट करने की कोशिश कर रहा है जिसे उसके अनुकूल बनाया ही नहीं गया है। एकदम सही बात है। और अगर हम इसे और स्पष्ट रूप से देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 4.3 करोड़ लोग पूर्ण रूप से दृष्टिहीन हैं। और इसके अलावा लगभग 29.5 करोड़ लोग गंभीर रूप से दृष्टिबाधित हैं। मतलब ये वो लोग हैं जिनके लिए हमारी इस सुंदर दुनिया के रंगों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और इसके बाद जो आंकड़े आते हैं वे इस बात को और भी जटिल बना देते हैं। जैसे बहरेपन वाले आंकड़े। 43 करोड़ लोग बहरेपन का शिकार हैं। करोड़ों लोग एम्प्यूटी हैं, मतलब बिना हाथ या पैर के जीवन जी रहे हैं। सही कहा। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल उठता है। विकलांगता तो मानव इतिहास में हमेशा से रही है ना? बिल्कुल रही है। पर हम अक्सर ये मान बैठते हैं कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने इंसान को अजय बना लिया है, सब कुछ ठीक किया जा सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा मिथक है। वही तो। फिर भी स्रोत ऐसी बीमारियों की एक लंबी सूची देते हैं जिनमें बचने की संभावना लगभग 0 है। जैसे कैंसर के 5 करोड़ मरीज। देखिए, कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है। ये कोशिकाओं का, मतलब सेल्स का एक ऐसा विद्रोह है जिसे हमारा विज्ञान अभी तक पूरी तरह से डिकोड ही नहीं कर पाया है। हाँ, खासकर जब वो एडवांस स्टेज में हो। बिल्कुल, विशेष रूप से जब हम पैंक्रियाटिक कैंसर या ग्लियोब्लास्टोमा की बात करते हैं, जो कि ब्रेन कैंसर होता है, राइट? हाँ, जब ये अपनी चौथी स्टेज पर पहुंचते हैं तो शरीर का अपना ही सिस्टम उसके खिलाफ इतना हावी हो जाता है कि कोई भी बाहरी दवा काम नहीं करती। बाप रे।
और इसी सूची में ALS और अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों का भी जिक्र है। जब मैं इन दोनों के बारे में पढ़ रही थी तो मुझे इनके बीच का जो दार्शनिक और जैविक विरोधाभास है ना, वो बहुत ही हैरान करने वाला लगा। हाँ, दोनों बिल्कुल अलग छोर पर हैं। मतलब देखिए, ALS जो मशहूर वैज्ञानिक स्टीवन हॉकिंग्स को था, उसमें इंसान का दिमाग पूरी तरह से सजग रहता है, लेकिन जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो खत्म होने लगते हैं। शरीर का नियंत्रण चला जाता है। हाँ, इंसान एक ऐसे शरीर में कैद हो जाता है जो हिल भी नहीं सकता। इसे मेडिकल साइंस में एक तरह का लॉक्ड इन सिंड्रोम माना जाता है, जहां चेतना बरकरार रहती है लेकिन अभिव्यक्ति का हर एक रास्ता, हर एक दरवाजा बंद हो जाता है। कितना भयानक है ये। और इसके ठीक विपरीत है अल्जाइमर, जिससे दुनिया में करीब 5.5 करोड़ लोग पीड़ित हैं। हाँ, इसमें इंसान का शरीर एकदम स्वस्थ रहता है, वो चल फिर सकता है, लेकिन उसके दिमाग के न्यूरॉन्स इस तरह से नष्ट होते हैं कि वो अपनी ही यादों के घर की चाबी खो देता है। वो भूल जाता है कि वो कौन है। बिल्कुल, मतलब एक बीमारी में शरीर पिंजरा बन जाता है और दूसरी बीमारी में इंसान का खुद का मैं यानी उसकी पहचान ही मिट जाती है। चिकित्सा विज्ञान के सामने ये दोनों स्थितियां इंसान की सीमाओं का सबसे बड़ा प्रमाण है। एकदम सही विश्लेषण है आपका। और इसके अलावा श्रुत कुछ ऐसी बीमारियों की भी याद दिलाते हैं जिन्हें शायद हम भूल चुके हैं, जैसे रेबीज। हाँ, रेबीज। इसकी मृत्यु दर आज भी 100% है। 100%? बिल्कुल। एक बार लक्षण दिखने शुरू हो गए तो तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और कोई इलाज संभव नहीं है। और HIV एड्स का भी जिक्र था स्रोतों में। हाँ, उसके 4 करोड़ मरीज आज भी जीवन रक्षक दवाओं पर ही निर्भर हैं। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ी सी उलझन हो रही है। कैसी उलझन? स्रोतों ने कुछ लाइफस्टाइल बीमारियों के आंकड़े भी तो दिए हैं ना, जैसे हाई ब्लड प्रेशर के 1.3 अरब मरीज, हार्ट अटैक के 54 करोड़, डायबिटीज के 53.7 करोड़ और किडनी रोगों के 50 करोड़ मरीज। हाँ, यही वाले। तो क्या इन लाइफस्टाइल बीमारियों को रेबीज या कैंसर जैसी टर्मिनल बीमारियों के साथ रखना सही है? आपका क्या सोचना है इस पर? मतलब ब्लड प्रेशर और डायबिटीज तो मुख्य रूप से खराब खान पान और व्यायाम न करने का नतीजा है ना। ये तो इंसान की व्यक्तिगत पसंद का मामला लगता है। इसे दुनिया की स्याह सच्चाई कैसे कह सकते हैं? ये तर्क ऊपर से देखने में बिल्कुल सही लगता है, लेकिन विज्ञान इसे थोड़ा अलग नजरिए से देखता है। वो कैसे? लाइफस्टाइल बीमारियां सिर्फ व्यक्तिगत पसंद का परिणाम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी संस्थागत और वातावरणीय विफलता का नतीजा है। अच्छा, मतलब जब 1.3 अरब लोग ब्लड प्रेशर के शिकार हों तो इसे आप सिर्फ खराब खानपान कहकर खारिज नहीं कर सकते। हाँ, आंकड़ा तो बहुत बड़ा है। ये क्रॉनिक स्ट्रेस, मिलावटी भोजन और एक ऐसे सिस्टम का परिणाम है जहां शरीर लगातार फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है। मतलब शरीर हमेशा इमरजेंसी स्थिति में रहता है। बिल्कुल, ये एक धीमी गति की महामारी है जो शरीर के आंतरिक अंगों में लगातार सूजन या इन्फ्लेमेशन पैदा कर रही है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हम जिस दुनिया को आधुनिक कह रहे हैं उसका पूरा का पूरा ढांचा इंसान की बायोलॉजी के खिलाफ काम कर रहा है। एकदम सही। शरीर तो टूट ही रहा है। लेकिन अगर हम उन लोगों की बात करें जिनके शरीर बिल्कुल फिट हैं, मतलब जो लोग रोज जिम जाते हैं, बहुत अच्छी डाइट लेते हैं, ये चर्चा का वो बिंदु है जहां चीजें और भी ज्यादा डरावनी हो जाती हैं। हाँ, क्योंकि स्रोतों ने यहाँ एक अदृश्य महामारी का जिक्र किया है, मानसिक स्वास्थ्य का संकट। देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य को तो नापा जा सकता है, टेस्ट किए जा सकते हैं, लेकिन जब बात दिमाग की आती है तो स्थिति बहुत गहरी और खामोश होती है। स्रोत बताते हैं कि दुनिया में 1.2 अरब लोग, मतलब हर 7 में से एक व्यक्ति डिप्रेशन, एंजाइटी या सिजोफ्रेनिया का शिकार है। बाहर से मुस्कुराता हुआ चेहरा अंदर से न्यूरोकेमिकल असंतुलन से जूझ रहा होता है, किसी को पता भी नहीं चलता। और इसमें जो अकेलेपन का आंकड़ा है ना, वो तो किसी भी थ्रिलर फिल्म से ज्यादा डरावना है। 4.5 अरब लोग भयानक अकेलेपन में जी रहे हैं। और स्रोत दावा करते हैं कि इस अकेलेपन के कारण हर साल 8,71,000 लोग मरते हैं। हाँ, और इसकी तुलना रोज 15 सिगरेट पीने से की गई है। मुझे ये 15 सिगरेट वाला दावा थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको। मतलब एक भावना, एक इमोशन जैसे कि अकेलापन, वो शारीरिक रूप से फेफड़ों या दिल को कैसे इतना नुकसान पहुंचा सकता है? इसके पीछे का जो न्यूरोसाइंस और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है वो बहुत ही दिलचस्प है। अच्छा, कैसे? हजारों साल पहले की बात सोचिए। जब इंसान जंगलों में रहता था तो झुंड से अलग होने या अकेले पड़ने का क्या मतलब होता था? मौत,
क्योंकि या तो कोई जानवर खा जाएगा या इंसान भूख से मर जाएगा। बिल्कुल, निश्चित मौत। इसीलिए विकासवाद ने यानी एवोल्यूशन ने इंसान के शरीर में एक अलार्म सिस्टम बना दिया। ओके। जब भी इंसान खुद को अकेला महसूस करता है तो उसका दिमाग शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन छोड़ना शुरू कर देता है। मतलब शरीर को लगता है कि उस पर कोई बाहरी हमला होने वाला है। एकदम सही। शरीर लगातार एक आपातकालीन स्थिति में चला जाता है, और जब यह आपातकाल कुछ घंटों का नहीं बल्कि महीनों या सालों तक चलता है तो सिस्टम क्रैश होने लगता है। हाँ, ये ब्लड वेसल्स को संकुचित कर देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है और हमारे इम्यून सिस्टम को शट डाउन कर देता है। बाप रे। यही कारण है कि गंभीर अकेलापन कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों और स्ट्रोक का सीधा कारण बनता है। शरीर की नसों को जो नुकसान रोज 15 सिगरेट पीने से होता है, हूबहू वही नुकसान इस लगातार बने रहने वाले क्रॉनिक स्ट्रेस से होता है। ये तो एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास है। मतलब हम मानव इतिहास के सबसे ज्यादा कनेक्टेड युग में रह रहे हैं। बिल्कुल, सबके पास फोन है। हाँ, हमारी जेब में स्मार्टफोन है, दुनिया के किसी भी कोने में वीडियो कॉल की जा सकती है, सोशल मीडिया पर लोगों के हजारों दोस्त हैं। फिर भी 1.5 अरब लोग इस जानलेवा अकेलेपन से क्यों गुजर रहे हैं? क्या तकनीक ने कुछ बिगाड़ दिया है? तकनीक ने दरअसल कनेक्शन का एक भ्रम पैदा कर दिया है। इल्यूजन ऑफ कनेक्शन। हाँ। स्क्रीन के जरिए होने वाला संवाद इंसान के उस जैविक जरूरत को पूरा नहीं कर सकता जो भौतिक उपस्थिति, स्पर्श और एक दूसरे की आंखों में देखने से पूरे होती है। वो गर्माहट स्क्रीन से नहीं मिल सकती। सही कहा। जब हम सोशल मीडिया पर होते हैं तो हम अक्सर दूसरों की परफेक्ट जिंदगी की तुलना अपनी वास्तविक जिंदगी से कर रहे होते हैं, जो अकेलेपन और अपर्याप्तता की भावना को और भी ज्यादा गहरा कर देता है। बिल्कुल। और इसी गहरे अकेलेपन का जो सबसे दुखद परिणाम सामने आता है वो आत्महत्या के आंकड़ों में झलकता है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि हर साल दुनिया में 7,20,000 लोग अपनी जान दे देते हैं। इसका सीधा सा गणित ये है कि हर 40 सेकंड में एक इंसान ये तय कर रहा है कि इस दुनिया में जीने से ज्यादा आसान मर जाना है। हर 40 सेकंड में? ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारे सामाजिक ढांचे की एक बहुत बड़ी विफलता है। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि इंसान का मनोवैज्ञानिक अस्तित्व कितनी नाजुक डोर पे टिका हुआ है। तो अब तक हमने ये देखा कि इंसान का शरीर कैसे टूट रहा है और कैसे उसका मन उस शरीर के अंदर ही दम घूंट रहा है। शरीर और मन दोनों की बात हो गई। हाँ, लेकिन अब इस गगनचुंबी इमारत के बेसमेंट के उस हिस्से में चलते हैं जहां समाज एक बाहरी ताकत के रूप में इंसानों को कुचल रहा है। संस्थागत स्तर की बात। बिल्कुल। जब हम व्यक्तिगत दुख से बाहर निकलकर संस्थागत स्तर पर आते हैं तो स्रोत बताते हैं कि आज भी 5 करोड़ लोग आधुनिक दास्ता मतलब मॉडर्न स्लेवरी का शिकार हैं। ये आंकड़ा इस बात का पर्दाफाश करता है कि हम वास्तव में कितने सभ्य हुए हैं, क्योंकि हम तो यही मानते हैं कि गुलामी सदियों पहले खत्म हो चुकी है। लेकिन आज इसका स्वरूप बदल गया है ना। यह अब लोहे की जंजीरों में नहीं है बल्कि कर्ज, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी के रूप में मौजूद है। और इनमें से 63 लाख लोग जबरन देह व्यापार में धकेले गए हैं, मतलब फोर्स सेक्स वर्क में, जो कि बहुत ही भयानक है। और जो बात इस आंकड़े को सबसे ज्यादा डरावनी बनाती है वो ये है कि इनमें से 99% महिलाएं और मासूम बच्चियां हैं। इंसान को बस एक उत्पाद या कमोडिटी में बदल दिया गया है जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है। ये अर्थशास्त्र और मानवीय क्रूरता का सबसे विभत्स संगम है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। जब किसी समाज में मुनाफे और ताकत को मानवीय गरिमा से ऊपर रखा जाता है तो इसी तरह के भयानक बाजार पैदा होते हैं। और इसी समाज में 15 करोड़ 3 लाख अनाथ बच्चे भी हैं। हाँ। स्रोत बताते हैं कि इनमें से 30 से 90 लाख बच्चे अनाथालयों की 4 दीवारी के पीछे पल रहे हैं, जिन्हें शायद कभी किसी परिवार का हिस्सा बनने का मौका ही नहीं मिलेगा। और अपराध के आंकड़े भी कम डरावने नहीं हैं। दुनिया की जेलों में 1.2 करोड़ कैदी बंद हैं। हिंसा का स्तर तो यह है कि हर दिन 1200 हत्याएं दर्ज होती हैं। और अगर कोई इंसान सिर्फ सड़क पर निकलता है तो सड़क हादसों में हर साल 12 लाख मौतें होती हैं। मतलब हर 24 सेकंड में एक जान जाती है। ये सभी आंकड़े एक ऐसे समाज का चित्र खींचते हैं जो बहुत तेज गति से आगे तो भाग रहा है, लेकिन उसने अपने सबसे कमजोर लोगों को पीछे ही छोड़ दिया है। लेकिन इन सब में एक आंकड़ा ऐसा है जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। स्रोतों ने इसे एक भुला दिया गया सच कहा है। भुखमरी वाला आंकड़ा? हाँ, आज 73.5 करोड़ लोग यानी 735 मिलियन लोग
भूखे सोते हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में हर रोज टनों पिज्जा, बर्गर और बचा हुआ खाना डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। वही तो, ये कैसे संभव है? क्या धरती पर खाना उगाने की क्षमता कम हो गई है? नहीं, समस्या उत्पादन की बिल्कुल नहीं है। दुनिया में इंसान की जरूरत से कहीं ज्यादा खाना पैदा होता है। फिर दिक्कत कहाँ है? समस्या डिस्ट्रीब्यूशन और अर्थशास्त्र के बुनियादी ढांचे की है। भोजन को एक मौलिक अधिकार मानने के बजाय एक कमोडिटी माना जाता है जिसे बेचा जा सके। बिल्कुल। लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वे वहां भोजन पहुंचाते हैं जहां से मुनाफा आता है, वहां नहीं जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये तो बहुत ही संवेदनहीन व्यवस्था है। एक तरफ भारी मात्रा में खाने की बर्बादी और दूसरी तरफ कुपोषण। ये सीधे तौर पर हमारी व्यवस्था की संवेदनहीनता को ही दर्शाता है। तो अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे जटिल और दार्शनिक हिस्से पर आते हैं। हाँ। हमने शरीर की टूट फूट देखी, मन का अंधेरा देखा और समाज की क्रूरता देखी। हाँ। लेकिन स्रोतों ने इन सब के मूल कारण का जो विश्लेषण किया है ना, उस पर मुझे थोड़ी आपत्ति है। क्या आपत्ति है? स्रोत का दावा है कि दुनिया के 70% रोगों और दुखों के मूल में धन पाने की इच्छा है। अच्छा। मतलब ये बात सुनने में किसी आध्यात्मिक बाबा के प्रवचन जैसी लगती है। क्या विज्ञान वाकई ये मानता है कि पैसा कमाने की चाहत से बीमारियां पैदा होती हैं? इस दावे को थोड़ी गहराई से डिकोड करने की जरूरत है। हाँ, प्लीज समझाइए। ये बात सिर्फ कागजी नोटों या बैंक बैलेंस की नहीं है, बल्कि उस जीवन शैली की है जो धन के अंतहीन संचय के साथ आती है। मतलब हमेशा और ज्यादा पाने की होड़। बिल्कुल। जैसा कि हमने पहले कॉर्टिसोल और स्ट्रेस के बारे में बात की थी, जब इंसान का मुख्य लक्ष्य सिर्फ संपत्ति जुटाना बन जाता है तो वो लगातार एक प्रतिस्पर्धी स्थिति में रहता है, हमेशा रेस में दौड़ता रहता है। हाँ, ये निरंतर प्रतिस्पर्धा शरीर के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कभी शांत नहीं होने देती, और जब शरीर आराम नहीं करता तो सेल्यूलर रिपेयर रुक जाती है। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि लालच की एक जैविक कीमत होती है। अच्छा, ठीक है, मैं ये जैविक तनाव वाला हिस्सा तो समझ सकती हूँ, लेकिन स्रोत ने एक और चौंकाने वाला दावा किया है। कौन सा? कि 25% शारीरिक और मानसिक रोग परिवार, मित्र या समाज द्वारा दिए गए धोखे और तनाव से आते हैं। और इसमें उन्होंने जो उदाहरण दिया है वो बहुत कड़वा है। अनाथालयों वाले बुजुर्गों का? हाँ, अनाथालय में रहने वाले 20% बुजुर्ग कभी अरबपति हुआ करते थे। जैसे ही उन्होंने अपनी संपत्ति अपने बच्चों के नाम की, उन्हें घर से निकाल दिया गया। ये बहुत ही दुखद सच्चाई है। स्रोतों में विजयपत सिंघानिया जैसे बड़े उद्योगपतियों का उदाहरण भी दिया गया है। ये घटना इस बात का प्रमाण है कि कैसे धन का मनोविज्ञान इंसानी रिश्तों को नष्ट कर देता है। इंसान अपनों को ही भूल जाता है। जब सफलता का पैमाना सिर्फ पैसा बन जाता है तो परिवार के सदस्य भी एक दूसरे को संपत्ति या प्रतिद्वंदी के रूप में देखने लगते हैं। इंसान सोचता है कि धन उसे सुरक्षा देगा, लेकिन अंततः वही धन उसे अपनों से अलग कर देता है। और इसी बात को समझाने के लिए स्रोतों ने कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की एक बहुत ही कमाल की एनालॉजी दी है। वो एनालॉजी बहुत सटीक है। हाँ, ये विचार वाकई में चीजों को देखने का नजरिया ही बदल देता है। इसमें इंसान के शरीर, उसके घर, उसकी गाड़ियों और बैंक बैलेंस की तुलना एक कंप्यूटर के हार्डवेयर से की गई है। और सॉफ्टवेयर क्या है? इंसान का जो सॉफ्टवेयर है, यानी उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, वो है प्रेम, परिवार की एकता, आपसी संवाद और किसी की परवाह करना। ये एनालॉजी इस बात को स्पष्ट करती है कि एक बेहतरीन हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के सिर्फ एक धातु का डिब्बा है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं। बिल्कुल। इंसान का मूल डिजाइन इसी तरह से हुआ है कि उसे सही से काम करने के लिए उस भावनात्मक कनेक्शन यानी सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। तो मतलब जब इंसान सिर्फ भौतिक संपदा के पीछे भागता है तो वो वास्तव में अपने सिस्टम से जरूरी सॉफ्टवेयर को करप्ट कर रहा होता है। एकदम सही। मतलब ये कि जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि वो बहुत सारा पैसा कमाकर खुशियां खरीद लेगा, तो वो अनजाने में अपनी खुशी के ऑपरेटिंग सिस्टम को ही अनइंस्टॉल कर रहा होता है। यही सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। सच में बाजार से दुनिया का हर सुख साधन खरीदा जा सकता है, लेकिन वो भावना नहीं खरीदी जा सकती जो एक परिवार के साथ बैठकर भोजन करने में होती है। सही बात है। और स्रोत कहता है कि बिना इस सॉफ्टवेयर के इंसान एक ज़ॉम्बी बन जाता है, मतलब बाहर से जीवित लेकिन अंदर से मृत। इसी कारण से हम देखते हैं कि जो लोग भौतिक रूप से बहुत समृद्ध हैं, वे भी गंभीर मानसिक और शारीरिक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं।
लालच और असीमित इच्छाओं ने इंसानियत के सॉफ्टवेयर को बुरी तरह से संक्रमित कर दिया है। तो इस पूरी चर्चा को अगर एक धागे में पिरोया जाए तो ये स्पष्ट होता है कि हमने जिस दुनिया का निर्माण किया है वो बाहरी तौर पर तो बहुत चमकदार है, लेकिन इसने इंसान के अंदरूनी ढांचे को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। चाहे वो शरीर हो या मन। हाँ, चाहे वो बीमारियों का बढ़ता चक्र हो, खामोशी से मारता अकेलापन हो, या फिर धन के लालच में टूटते मानवीय रिश्ते। ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां हार्डवेयर को अपग्रेड करने की अंधी दौड़ में इंसान अपना सॉफ्टवेयर हमेशा के लिए खो रहा है। और ये समझना बहुत आवश्यक है कि जब तक इस बुनियादी कनेक्शन को नहीं सुधारा जाता, तब तक किसी भी तरह की तकनीकी या आर्थिक प्रगति इंसान के इस गहरे खोखलेपन को नहीं भर सकती। बिल्कुल। और ओम, यही बात एक बहुत ही गंभीर और नए सवाल को जन्म देती है। आज हमने देखा कि इंसान का आपसी प्रेम और कनेक्शन ही वो सॉफ्टवेयर है जो उसे जीवित रखता है। हाँ। लेकिन जिस तेजी से दुनिया आगे बढ़ रही है, अगले 1 या 2 दशकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी पूरी तरह से इंसानी भावनाओं की नकल करने लगेंगे। ये तो होना ही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भविष्य का इंसान अकेलेपन और रिश्तों के तनाव से बचने के लिए मशीनों और एआई साथियों के रूप में एक आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेगा? ये एक बहुत ही गहरा विचार है। और अगर ऐसा हुआ तो क्या वो कृत्रिम भावना इंसान को उन जैविक बीमारियों से बचा पाएगी, या फिर वो इंसानियत के अस्तित्व को ही हमेशा के लिए एक सिमुलेशन में बदल देगी? ये एक ऐसा विचार है जो भविष्य की उस गगनचुंबी इमारत की नींव को लेकर और भी बड़े सवाल खड़ा करता है। श्रोताओं को इस पर जरूर विचार करना चाहिए। बिल्कुल। और इसी के साथ इस गहन अध्ययन को हम यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।